हेलो दोस्तों। आज हमारा जो चैप्टर है वो है नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आज हम जो है इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको बोलते हैं विधि शास्त्र एवं विधिक सिद्धांत। यूनिट 1 है, इसमें नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सोर्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, विधि शास्त्र का स्वरूप, विधि शास्त्र के स्रोत और न्याय प्रशासन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये दोनों लैंग्वेज में तैयार किया है, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ थ्योरी, philosophy and applications of law. It examines the metaphysical foundation, theoretical basis, and the practical implementation of legal principles. The main objective of jurisprudence is to understand the nature of law, its source, and its impact on society. Jurisprudence can be primarily divided into 4 categories. The first category is analytical jurisprudence. This focuses on analyzing the structures and terminology of law. It involves a scientific examination of legal principles. Second है historical jurisprudence. So this studies the development and origin of law. It looks at how law has evolved over time. Third है comparative jurisprudence. This compares different legal systems and examinations their similarities and differences. Fourth, sociological jurisprudence. This analyzes the relationship between law and society, studying how law affects society and how society influences law. In essence, jurisprudence seeks to provide a deep understanding of legal concepts, their origin, and the implications of the real world. This is all about nature of jurisprudence. हिंदी में इसकी व्याख्या इस प्रकार है। न्यायशास्त्र का अर्थ और स्वभाव क्या है? न्यायशास्त्र वह विद्या है जो कानून के सिद्धांतों, उनकी व्याख्या और उनके न्यायिक अनुप्रयोग का अध्ययन करती है। यह कानून के तत्वमीमांसा, तत्वादिक आधार और व्यवहारिक क्रियान्वयन का विश्लेषण करती है। न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य कानून की प्रकृति, उसके स्रोत और समाज पर उसके प्रभाव को समझना होता है। न्यायशास्त्र मुख्य 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र, यह कानून की संरचना और शब्दावली का विश्लेषण करता है। इसमें कानून के सिद्धांतों की वैज्ञानिक विधि से जांच की जाती है। सेकंड है ऐतिहासिक न्यायशास्त्र, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस। यह कानून के विकास और उत्पत्ति का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि कानून समय के साथ कैसे विकसित हुआ। थर्ड है तुलनात्मक न्यायशास्त्र, कॉम्परेटिव जुरिस्प्रूडेंस। यह विभिन्न कानूनी प्रणालियों की तुलना करता है और उनके बीच समानता और विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। एंड द फोर्थ इज समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र, सोशलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। यह कानून और समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है और इस बात का अध्ययन करता है कि कानून समाज को कैसे प्रभावित करता है और समाज कानून को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस लॉ। जुरिस्प्रूडेंस लॉ के सोर्स क्या हैं? Source of jurisprudence are the elements of foundations from which legal principles and rules developed. These sources are crucial aspect of the study of jurisprudence. The following sources are widely recognized. Legislation. This is the primary source of law, including statutes and laws enacted by the Parliament of legislature bodies, acts and regulations passed by the legislature from the basis of law.
Second, judicially decisions made by courts, especially higher courts like high courts and supreme court, are significant source of law. These are known are precedents and serve as guided for future judicial decisions. Third is customs and traditions. Custom and tradition prevailing in society are also important sources of law, as long as these customs do not violate and statute or conditional provision, they are legally recognized. Fourth, agreements. Contract and agreement are also source of law, particularly significant in case where two or more parties enter into a legal relationship. Fifth, legal literature and scholarly opinions, texts, articles, and research papers written by jurists and legal scholars also help in understanding and developing legal principles. These are interpretive sources that aid in the interpretations and critique of law. In summary, jurisprudence derives from a variety of sources, each contributing of the formations, interpretations, and applications of legal principle within a society. Next one is न्याय शास्त्र के source of jurisprudence law. न्याय शास्त्र के स्रोत व तत्व या आधार होते हैं जिनके कानून के सिद्धांत और नियम विकसित होते हैं। इन स्रोतों का अध्ययन न्याय शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निम्नलिखित स्रोत को प्रमुखता से स्वीकार किया जा सकता है। फर्स्ट इज विधायिका लेजिस्लेशन। यह कानून का प्रमुख स्रोत है जहां संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून शामिल होते हैं। विधायिका द्वारा पारित अधिनियम और नियम कानून का आधार बनाते हैं। न्यायिक निर्णय जुडिशियल डिसीजन। न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय, विशेषकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कानून के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उन्हें नजीर कहा जाता है और भविष्य में न्यायिक निर्णयों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। थर्ड, रीति रिवाज और परंपराएं। समाज में प्रचलित रीति रिवाज और परंपराएं भी कानून का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। जब तक ये रीति रिवाज किसी अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। फोर्थ है सहमति एग्रीमेंट्स। अनुबंध और समझौते भी कानून के स्रोत होते हैं। ये उन मामलों में विशेष महत्व रखते हैं जहां दो या दो से अधिक पक्ष एक कानूनी संबंध में प्रवेश करते हैं। विधिक ग्रंथ और विद्वानों की राय लीगल लिटरेचर्स एंड स्कॉलरली ओपिनियंस। न्याय शास्त्रियों और विधिक विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, लेख और शोध पत्र भी कानून के सिद्धांतों को समझने और विकसित करने में सहायक होते हैं। ये व्याख्यात्मक स्रोत होते हैं जो कानून की व्याख्या और रचना में मदद करते हैं। क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन jurisprudence. The administration of justice is the aspect of the judicial system that enforce the rules and principles of law in society. Its primary goals to ensure peace, orders, and justice through the applications of law. The main components of the administration of justice are followed. Legislature. The legislature makes laws and establishes the principle that will be enforced by the court. It provides guidelines and framework for the judicial system. Second है judiciary. The judiciary roles is to interpret and apply the law. This includes the operations of courts, of enforcement of judicial decisions, and the interpretation of legal principles. This judiciary is independent and aims to administration justice impartially. Executive. The executive enforces the law and conducts administrative functions. It oversees institutions such as the police, prosecutions, and prisons, ensuring that law are followed. Fourth, legal professions. Lawyers, advocates, and other legal professions are crucial parts of the
judicial systems. They represent parties in court and help in the administration of justice. Legal ads is essential for ensuring access to justice, especially for the poor and disadvantaged. It ensures that all individuals can seek justice regardless of their financial status. The administration of justice is the process of applying the rules and principles of law in society to maintain justice, peace, and order. न्यायशास्त्र में न्याय का प्रशासन। न्यायशास्त्र का प्रशासन न्यायिक प्रणाली का वह अंग है जो समाज में कानून के नियमों सिद्धांतों को लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कानून के माध्यम से समाज में शांति व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करना है। न्याय के प्रशासन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। विधायिका विधायिका कानून बनाती है और उन सिद्धांतों को स्थापित करती है जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह न्यायिक प्रणाली के लिए दिशा निर्देश और ढांचा प्रदान करती है। न्यायपालिका न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है और उसे लागू करना है। इसमें न्यायालयों को संचालन, न्यायिक निर्णयों का प्रवर्तन और कानून की व्याख्या शामिल है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और इसका उद्देश्य निष्पक्षता से न्याय करना होता है। कार्यपालिका कार्यपालिका कानून का प्रवर्तन और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। यह पुलिस, अभियोजन और जेल जैसी संस्थाओं का संचालन करती है और सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन हो। विधिक पेशा अधिवक्ता, वकील और अन्य विधिक पेशेवर न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये लोग अदालतों में पक्षों के प्रतिनिधित्व करते हैं और न्याय प्राप्त करने में सहायता करते हैं। विधिक सहायता लीगल एड न्याय प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। खासकर गरीब और असमर्थ लोगों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। न्याय का प्रशासन समाज में कानून के नियमों और सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य न्याय, शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। सो गाइज, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसके स्रोत क्या है और ये कैसे काम करती है, आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।